بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ کیسی چیکنگ؟ میں سمجھی نہیں۔ سونیا اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے بہت گھاگ ہیں، وہ ہمارے تمہارے دماغوں میں گھسے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ہو سکتا ہے کوئی تمہارے دماغ میں کسی طرح آ کر چھپ گیا ہو، اس لیے ہم اپنی تسلی کریں گے۔ ایک عامل تمہیں ہپنوٹائز کرے گا اور تمہارے اندر چھپے ہوئے چور خیالات پڑے گا اور دشمن کا سراغ لگائے گا۔ یہ ایک نئی پریشانی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ملک سے باہر جاتے وقت اس کے دماغ کو اندر سے بھی ٹٹولا جائے گا۔ پہلی بار اس کے اندر چور خیالات پیدا ہوئے تھے کہ وہ لندن جانے کے بہانے روس سے باہر نکل کر کسی دوسرے ملک میں اپنا ٹھکانہ بنائے گی، اور جب تک گزری ہوئی زندگی کے درست واقعات سامنے نہیں آئیں گے وہ ماسک مین کے لیے کام نہیں کرے گی۔ اب یہ باتیں ترمیمی عمل کرنے والا شخص ماسک مین کو بتا دے گا۔ اس نے پارس کے پاس آ کر اپنی پریشانی بتائی۔ وہ بولا، تمہاری ہر پریشانی کا علاج ہے، تم میری ماما کو اپنے دماغ میں آنے دو، وہ ترمیمی عمل کو ناکام بنا دیں گی۔ مجھے کسی بھی طرح اس مصیبت سے تو بچاؤ، اپنی ماما کو بلاؤ۔ تم 15 منٹ کے بعد آؤ یا وہ تمہارے پاس آئیں گی اور یہ کوڈ ورڈز ادا کریں گی۔ میں پارس کی ماں اور جوجو کی ساس ہوں۔ ٹھیک ہے، میں یہ کوڈ ورڈز یاد رکھوں گی۔ وہ چلی گئی۔ پارس نے ریسیور اٹھا کر ہاٹ لائن پر فرانس کے ایک ملٹری آفیسر سے کہا، مسٹر ولف کو فوراً میرے پاس بھیج دیں۔ اس نے ریسیور رکھا۔ 5 منٹ کے بعد ہی میں نے اس کے پاس آ کر پوچھا، کیا بات ہے بیٹے؟ اس نے جوجو کے تمام حالات بتائے۔ میں نے کہا، یہ ہماری زبردست کامیابی ہے کہ جوجو کسی حد تک تم سے متاثر ہے اور تمہاری ہدایات پر عمل کر رہی ہے۔ میں لیلا کو جوجو کے دماغ میں پہنچا رہا ہوں، وہ خود کو ماما کہہ کر اس کے پاس رہے گی اور دشمن کے ترمیمی عمل کو ناکام بنائے گی۔ میں دماغی طور پر حاضر ہوا۔ لیلا میرے پاس تھی۔ ہم 3 دن سے ایک ساتھ ایک کاٹیج میں تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک شریف زادی تھی، یوں ہی میرے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ ہم نے سونیا، سلطانہ اور سلمان کو اطلاع دے کر سادگی سے نکاح پڑھوا لیا تھا۔ اب وہ میری شریک حیات تھی۔ میں نے اسے جوجو کے متعلق تفصیل سے بتایا۔ ہم نے مشورہ کیا کہ کسی طرح اس عمل سے اپنی بیٹی کو بچانا چاہیے۔ پھر لیلا میرے دماغ میں آئی۔ میں جوجو کا موجودہ لہجہ یاد کر کے اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اسے سانس روکنی چاہیے تھی اور لیلا کو کوڈ ورڈز ادا کرنے تھے، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ پتہ چلا کہ ایک انجیکشن کے ذریعے جوجو کو تھوڑا کمزور بنایا گیا ہے تاکہ وہ کسی دشواری کے بغیر اپنے ترمیمی عمل کرنے والے کی معمولہ بن جائے۔ جوجو اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ ایک عامل بستر کے سرے پر کھڑا اسے کہہ رہا تھا، تم اپنے ملک اور قوم کی وفادار ہو، اس وفاداری کا تقاضا ہے کہ اپنے دل اور دماغ کو میری طرف مائل رکھو اور راضی خوشی ٹرانس میں آ جاؤ تاکہ میں تمہارے اندر چھپے ہوئے کسی دشمن کو نکال سکوں اور کمزور خیالات کو ختم کر سکوں۔ جو اس کی معمولہ بن جانے کے خیال سے پریشان ہو رہی تھی۔ لیلا نے کہا، بیٹی میں پارس کی ماما اور تمہاری ساس ہوں، فکر نہ کرو، تمہیں کوئی تسخیر نہیں کر سکے گا۔ وہ مطمئن ہو کر عامل سے بولی، میں ٹرانس میں آنے کے لیے ذہنی طور پر بالکل تیار ہوں۔ ادھر وہ مطمئن ہو کر اس پر عمل کرنے لگا۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ اسے معمولہ بنا کر صرف اس کے چور خیالات اس کی زبان سے اگلوائے گا، لیکن وہ تو باقاعدہ اسے معمولہ اور تابع دار بنا رہا تھا۔ پہلے تو وہ پوچھتا رہا کہ وہ چپکے ماسک مین اور پاسکل بوبا کے خلاف کیا سوچتی ہے اور ان لوگوں سے کون سی باتیں چھپاتی ہے۔ جوجو نے لیلا کی مدد سے کہا، میں ماسک مین کو اپنا بزرگ اور رہنما سمجھتی ہوں اور پاسکل بوبا کو ایک بہن کی طرح چاہتی ہوں۔ میں ان کے خلاف کبھی کوئی غلط بات دل میں نہیں لا سکتی۔ اس کے بعد عامل نے اس کے دماغ میں یہ باتیں اچھی طرح نقش کیں کہ وہ آخری سانس تک اپنے ملک و قوم کی وفادار رہے گی۔ بیرونی ممالک میں کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں، وہ 1 ہفتے کے اندر ماسکو واپس آ جائے گی۔ کوئی اسے بہکانے کی کوشش کرے یا وہ کسی سے متاثر ہونے لگے تو فوراً ماسک مین اور پاسکل بوبا کو اپنے اندر کی تمام باتیں بتائے گی۔ عامل نے اسے ہر پہلو سے پابند بنانے کے بعد اپنا عمل ختم کر دیا۔ اسے تنویمی نیند سونے کا حکم دے کر چلا گیا۔ میں نے لیلا سے کہہ دیا کہ عمل شروع ہونے کے بعد وہ جوجو کے دماغ میں اپنی آواز نہ سنائے۔ ہو سکتا تھا کہ ماسک مین جاسوسی کے لیے پاسکل بوبا کو چپ چاپ دماغ میں یہ دیکھنے کے لیے بھیجے کہ وہ سچ مچ معمولہ بن رہی ہے یا نہیں۔ ہم دونوں دماغی طور پر حاضر ہو گئے۔ میں نے لیلا سے کہا، اب مجھے جوجو کے دماغ پر عمل کر کے اسے اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ لیلا نے پوچھا، کیا یہ کافی نہیں کہ وہ اب پارس سے متاثر ہے؟ ہاں، اس کی ہدایات پر بھی عمل کرتی ہے،
लेकिन अब वो तन्हा आज़ाद जिंदगी गुजारने वाली है। उसने दुनिया के सर्द व गर्म को, दुनिया की कमीनगी और मक्कारियों को देखा नहीं है। उसे कहीं भी ठोकर लग सकती है। मैं किसी रोक टोक के बगैर अपनी बेटी के पास जाना चाहता हूँ। उसकी हिफाजत के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। आप अभी उसके पास जाएं। मैंने ख्याल खुआनी की परवाज़ की, फिर जोजो के दिमाग में पहुंचते ही चौंक गया। वहाँ पास्कल बूबा हंस रहा था और बोल रहा था, अभी मेरे एक ख़ास जासूस ने बताया है कि तुम पर तनवीमी अमल किया जा रहा है। मुझे मास्क मैन के इस कमीनेपन पर गुस्सा आता है। हमारी वफादारी के बावजूद वो हमसे बहुत सी बातें छुपाता है। उसने अल्पा को भी मुझसे छुपा दिया। वो चाहता था कि मैं उसके दिमाग पर हुकूमत ना करूं। अब वो तुम्हारे दिमाग पर हुकूमत करने से मुझे कैसे रोकेगा? वो नींद में थी और कुछ बोल नहीं सकती थी। पास्कल उसे तनवीमी नींद में समझ रहा था, फिर वो उस पर अमल करने लगा। वो सब अहमकों की जन्नत में रहते थे और अपनी हमाकत से एक के बाद एक जन्नत बनाते थे, फिर बाद में उसके बिगड़ने का तमाशा देखते थे। पास्कल अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करना चाहता था, लेकिन वो जोजो की बर्तरी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब भी वो उसके मुकाबले में कामयाबी हासिल करती थी तो ये एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता था, आला हुकाम की नज़रों में भी कमतर हो जाता। अब उसने सोचा था कि पहले वो जोजो को मामूला बनाएगा, फिर उसके दिमाग में छुपकर उसकी जहानत और प्लानिंग को समझकर उससे पहले फौरी अमल करेगा और उसके मुकाबले में कामयाबी हासिल करेगा। उससे ऐसी हरकतें करवाएगा कि जोजो रूसी अकाबरीन की नज़रों से गिर जाएगी। उसने अपनी दानिश्त में कुछ इस किस्म की बातें जोजो के दिमाग और जहन पर नक्श कराईं। फिर उसे तनवीमी नींद सुलाने का हुक्म देकर चला गया। ये कांटा निकल जाने के बाद मैंने जोजो पर अमल किया। ये बेटी की हिफाजत के लिए बाप का मुकद्दस अमल था। फिर मैं मुतमईन होकर वापस आ गया। जोजो 3 घंटे तक सोती रही, फिर बेदार हो गई। 2 घंटे बाद उसकी फ़्लाइट थी। उसने गुस्ल करके लिबास तब्दील किया। उसके बाद लैला को मुखातिब किया। पहले तो लैला ने सांस रोकी, फिर दोबारा उसके आने पर उससे पूछा, कौन है? वो बोली, मैं हूँ मामा। आपने मेरे पास आकर कहा था कि आप पारस की मामा और मेरी सास हैं। अच्छा, हमारी बेटी जोजो है। क्या नींद पूरी हो गई? जी हाँ, आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। शुक्रिया कैसा? माएँ अपनी बेटियों की हिफाजत ही करती हैं। एक बात बता दूँ, उस आमिल के जाने के बाद जब तुम नींद में थी, पास्कल भी तुम पर अमल करने आया था। अब वो अपने तनवीमी अमल का रद्द अमल मालूम करने दोबारा वापस ज़रूर आएगा। अच्छा, तो वो भी पर निकाल चुका है। उसे आने दें, मैं निमट लूँगी उससे। बेटी, जब भी ज़रूरत हो तो फ़ौरन मेरे पास आ जाओ। कोड वर्ड्स के तौर पर तुम ये बोलोगी, मैं पारस की जान हूँ और आप मेरी सास हैं। वो हंसती हुई वापस आ गई। थोड़ी देर के बाद में ही उसने पराई सोच की लहर महसूस की। पहली बार उसने सांस रोकी, दूसरी बार पास्कल का लहजा पहचान कर बोली, ओह पास्कल, तुम हो। पता नहीं क्यों जब से मैं सोकर उठी हूँ तब से तुम्हारा ही ख्याल आ रहा है। मेरी हालत अजीब सी है, मेरा दिल तुम्हारी तरफ खिंचा जा रहा है। वो खुश होकर बोला, ये मेरी खुशकिस्मती है कि तुम मेरी तरफ माइल हो रही हो, लेकिन मेरे आते ही तुमने सांस रोक ली थी। क्या मुझे सांस नहीं रोकनी चाहिए थी? हाँ, मगर मेरा ख्याल है कि अमल करने में कोई खामी रह गई। मैंने देखा है तुम अक्सर मामलात में बदहवास हो जाते हो। आज मैं मोहब्बत से सोच रही हूँ तो तुम्हारी बदहवासी पर भी प्यार आ रहा है। सच बताओ, तुमने कैसा अमल किया था? अब मैं तुमसे क्या छुपाऊं, मेरा हर अमल तुम्हारे दिमाग में नक्श हो गया है। सिर्फ ये एक अहम बात रह गई कि तुम मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं करोगी। ये बात नक्श करते वक्त कोई भूल हो गई थी। अच्छा हुआ भूल गई। अब तुम्हारे बारे में मेरे जो शर्मीले ख्यालात होंगे उन्हें तुम नहीं पढ़ सकोगे। कोई बात नहीं, आज रात जब तुम सो जाओगी तो मैं तुम्हें मामूला बनाकर ये बात भी नक्श कर दूंगा। तुम बड़े वो हो, अब अमल करोगे तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी। वो हंसते हुए बोला, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा और मैं अपना काम कर जाऊंगा। अच्छा रहने दो, अभी तो मैं अपने इख्तियार में हूँ, जाओ यहाँ से। उसने सांस रोकी, वो बाहर चला गया। जोजो ने दिल में कहा, मैं तुम्हें ऐसी अहमकाना चालाकी की सज़ा ज़रूर दूंगी। वो मुकर्ररा वक्त पर तैयारे में सवार हो गई। फ़िलहाल उसे लंदन ही जाना था। वहाँ जाकर वो कोई नया ठिकाना बनाने के मुतल्लिक सोचने वाली थी। लंदन में मास्क मैन के एजेंट्स ने जोजो की रिहाइश का इंतज़ाम किया था और उसके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट आए थे। अब वो मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकती थी। इस तरह ये मैंने सब कुछ मालूम कर लिया था और पारस को भी बता दिया था। वो एक अजनबी जवान के रूप में वहाँ मौजूद था। मास्क मैन के एजेंट उसे तस्वीर से पहचान सकते थे। पारस ने उसकी तस्वीर नहीं देखी थी, उसका रंग रूप बदल चुका था, जबकि पारस उसे दिलो जान से चाहने के बावजूद पहचान नहीं सकता था।
जब वो लगेज हॉल से ट्रॉली लेकर निकली तो मैंने बताया, देखो बेटे, वो है मेरी प्यारी सी बहू। मैं उसके दिमाग से निकलकर बहू के दिमाग में आ गया, क्योंकि बेटे के जज्बात पढ़ना खिलाफ तहजीब था। वैसे वो अपनी जोजो को नए रूप और नए अंदाज में देखकर खुश हो गया था। पहले वो लोगों की भीड़ में बच्चों जैसी हरकतें करती थी, अब उसके चेहरे से संजीदगी और सरापे से रोब दबदबा जाहिर हो रहा था। अच्छी सेहतमंद थी, जिस्मानी साख्त ऐसी थी कि 20 बरस से कम उम्र की लड़की दिखाई देती थी। ऐसी हसीन, ऐसी भरपूर लड़की जिसे देखने वाले उम्र का हिसाब करना भूल जाते। पारस थोड़ी देर के लिए अपने आप को भूल गया था, फिर वो चौंक कर आगे बढ़ा। एक शख्स जोजो का रास्ता रोक कर कुछ कह रहा था। पारस ने उनके करीब से गुजरते हुए सुना, जोजो उससे कह रही थी, मैं कैसे यकीन करूं कि तुम मेरे खादिम हो? मैं योगा का माहिर नहीं हूं, आप मेरे ख्यालात को पढ़ सकती हैं। वो बोली, तुम ज़रूरत से ज़्यादा ही अहमक हो। क्या मैं लोगों की भीड़ में चलते फिरते ख्यालात पढ़ूं? चलो बताओ मैं किस तरह ख्यालात पढ़ूं? जैसा कि आप टेलीपैथी के ज़रिए पढ़ती हैं। टेलीपैथी? वो हैरत से चीख कर बोली, क्या तुम मुझे टेलीपैथी जानने वाली समझ रहे हो? क्या पागल खाने से आए हो? वो परेशान हो गया, फिर जेब से जोजो की तस्वीर निकालकर उसे दिखाते हुए बोला, मुझे बताया गया था कि आप इस फ्लाइट से आ रही हैं और ख्याल ख्वानी के ज़रिए मुझे पहचान कर भरोसा करेंगी। जोजो ने अपनी तस्वीर लेकर कहा, तुम गधे हो, पहले ही ये तस्वीर दिखा देते तो इतना वक्त ज़ाया ना होता। मैं किसी ऐरे गैरे से कहने से ख्याल ख्वानी नहीं करती हूँ। सॉरी मिस रोज़मेरी, मुझसे गलती हो गई। वो उसके साथ एक कार में बैठने लगी। पारस अपनी कार में आ गया। जब वो गाड़ियाँ आगे पीछे चलने लगीं, जोजो ने पारस के दिमाग पर दस्तक दी, तुम कार चला रहे हो, ऐसे वक्त मुझे तुम्हारे दिमाग में नहीं रहना चाहिए। आई हो तो ना जाओ, मैं तुम्हारी गाड़ी के पीछे हूँ। मेकअप के ज़रिए चेहरा बदला हुआ है ताकि तुम्हारे यानी मास्क मैन के एजेंट्स मुझे पहचान ना सकें। क्या तुम मेरी जासूसी करते रहोगे? हरगिज़ नहीं। छुपकर तुम्हारी मसरूफियात मालूम करने का इरादा होता तो अभी तुम्हें ना बताता कि मैं असली चेहरा छुपाए तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। मैं सिर्फ दुश्मनों से छुप रहा हूँ। तुम नई जगह आई हो, तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है। वैसे तुम जब भी नागवारी महसूस करोगी, मैं तुमसे दूर हो जाऊँगा। तुम बहुत अच्छे हो, मैं कभी नागवारी महसूस नहीं करूँगी, लेकिन तुम्हारे ही मशवरे के बगैर, किसी की नज़रों में आए बगैर कहीं तन्हा रहना चाहती हूँ। आज मेरे मशवरे पर अमल ना करो। मास्क मैन के एक ही आदमी ने तुमसे मुलाकात की है, तुम्हें होटल की तरफ ले जा रहा है। इसका मतलब है बाकी लोग छुपकर तुम्हारा ताकुब कर रहे हैं। ठीक है, मैं उनके रिज़र्व किए हुए होटल में रहूँगी, फिर मौका देखकर वहाँ से चली जाऊँगी। मैं उसके दिमाग में मौजूद रहा। कोई ज़रूरी नहीं कि उस मौके का इंतज़ार किया जाए, मौका निकाला भी जाता है। वो होटल में आई, वहाँ 4 ख़ास मातहतों से मुलाकात की, जिनमें से एक योगा का माहिर था। उसने कहा, मिस रोज़मेरी, मास्क मैन का हुक्म है कि मैं आपका पर्सनल बॉडीगार्ड बनकर रहूं। वो बोली, मैं अपने तौर पर फैसला करूंगी कि मेरे साथ कौन रहेगा, फ़िलहाल मुझे तन्हा छोड़ दो। वो उसे बज़ाहिर तन्हा छोड़कर चले गए, लेकिन होटल के अंदर और बाहर मौजूद रहे। मैं उनके अंदर मौजूद था। वो जहाँ जहाँ से उसकी निगरानी कर रहे थे, वो तमाम मकामात मेरी नज़रों में थे। उनके ज़रिए मैंने योगा के माहिर बॉडीगार्ड पर नज़र रखी। जो 7 बजे तफरीह के लिए निकली तो उस बॉडीगार्ड ने उसका ताकुब किया। मैंने पारस से कहा, उस बॉडीगार्ड को रास्ते से हटा दो, मैं जोजो को उसकी नज़रों से दूर ले जाऊंगा। जोजो ने क्लब में पहुंचकर पारस से राब्ता किया, फिर पूछा, क्या कोई मेरी निगरानी कर रहा है? हाँ, एक शख्स है, उसने होटल में तुमसे मुलाकात की थी। मैं होटल में आने वाले तमाम अफराद के दिमागों में जा रही हूँ, उनमें से कोई मेरे पीछे नहीं है। तुम जिस शख्स का जिक्र कर रहे हो वो योगा का माहिर है और मास्क मैन का ख़ास आदमी है। क्या उससे पीछा छुड़ाओगे? तुम दूसरा ठिकाना बनाने का इरादा करो तो मैं चुटकी बजाकर तुम्हारा उससे पीछा छुड़ा दूंगा, और ये मेरा शरीफाना वादा है कि मैं तुम्हारा ताकुब भी नहीं करूंगा। आई लव यू पारस, मैं आधे घंटे बाद इस क्लब से निकलूंगी, बेफिक्र रहो, जहाँ जाना चाहो जाओ। मैंने पारस के पास आकर कहा, मास्क मैन के उस खास आदमी को सिर्फ ज़ख्मी करो, हम पास्कल बूबा के खिलाफ चक्कर चलाएंगे। उसे ज़ख्मी करना कोई बड़ी बात नहीं थी। पारस उससे मुकाबला करके ऐसा कर सकता था, लेकिन खामखा वक्त ज़ाया होता। उसने साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर से क्लब के पार्किंग एरिया में उस पर गोली चलाई। मैं उसके अंदर पहुंच गया। गोली उसके बाजू की हड्डी को नुकसान पहुंचाती हुई गुजर गई थी। मैंने कहा, मैं पास्कल बोल रहा हूँ, रोज़मेरी का पीछा ना करो, मरहम पट्टी के लिए जाओ। वो हैरानी से बोला, मिस्टर पास्कल, मैं मास्क मैन के हुक्म पर अमल कर रहा हूँ। आज से तुम मेरे हुक्म की तामील करोगे। तुम्हारे इरादे क्या हैं?
मैं रोज़मेरी को अपनी मामूला और ताबेदार बना चुका हूँ। उसे एक खुफिया अड्डे पर पहुँचाने जा रहा हूँ। वापस आकर तुम पर भी तनवीमी अमल करूँगा। तुम बहुत काम के आदमी हो, मेरे मामूल बनकर बहुत काम आओगे। हरगिज़ नहीं, मैं मास्क मैन से गद्दारी नहीं करूँगा। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो टेलीपैथी जानने के गुरूर में। मैंने बात काट कर कहा, बकवास मत करो, किसी डॉक्टर के पास जाओ। तुम्हारे जाने के बाद मैं यहाँ से रोज़मेरी को ले जाऊँगा। मैं ज़ख्म की तकलीफ़ बर्दाश्त करूँगा, लेकिन रोज़मेरी का ताक़ुब करूँगा। मैंने उसे दिमागी झटका पहुँचाया। वो चीख मार कर अपनी कार के अंदर तड़पने लगा। कुछ लोग उसकी चीखें सुनकर दौड़ते हुए आ रहे थे। मैंने दूसरी बार ज़लज़ला पैदा किया तो वो बर्दाश्त ना कर सका, बेहोश हो गया। मैंने जोजो के पास आकर देखा, वो क्लब से निकल गई थी। अब किसी ऐसे स्टोर की तरफ जा रही थी जहां से मेकअप का ज़रूरी सामान खरीद सके। मैंने उसे एक बहुत बड़ी दुकान में पहुंचा दिया। उसने सोच लिया था कि आज रात किसी होटल में रहेगी, फिर दूसरे दिन कोई बंगला किराए पर हासिल करेगी। पहले उसने सोचा था कि लंदन चली जाएगी, किसी दूसरे मुल्क के छोटे से छोटे शहर में रहेगी, लेकिन अब दिल कह रहा था कि यहाँ पारस है, मैं उसे छुप कर रहूँगी मगर उसके करीब ही रहूँगी। वो अपनी ज़रूरियात का तमाम सामान खरीद कर एक होटल में आ गई, फिर अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके मेकअप करने लगी। उसे मेकअप करना आ गया था मगर महारत हासिल नहीं हुई थी। मैं चुपचाप उसकी मदद करता रहा। 1 घंटे की मेहनत से उसने अपना चेहरा तब्दील कर लिया। आईने में हर जाविये से खुद को देखा, फिर मुतमिन होकर सोफे पर बैठ गई। उसी वक्त पास्कल ने उसे मुखातिब किया। वो बोली, मास्क मैन के पास चलो, वहीं बातें होंगी। मैं हुक्म देता हूँ, अभी सिर्फ तुम मुझसे बातें करोगी। तुम्हारे बाप ने भी कभी हुक्म दिया था, गेट आउट यू फूल। उसने सांस रोकी और उसे बाहर भगा दिया। फिर मास्क मैन के दिमाग में दस्तक दी। उसने पूछा, क्या लंदन पहुंचकर काम शुरू कर दिया है? जी नहीं, मैं अभी आपकी खुशफहमी ख़त्म करने आई हूँ। तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है? यही कि मैं अब तुम्हारी नहीं, पास्कल बूबा की वफादार हूँ। क्या बक रही हो? अभी ये बातें बकवास लग रही हैं, लेकिन मैं कश्मकश में हूँ। आपसे वफादारी करना चाहती हूँ, लेकिन पास्कल ने मुझे अपनी मामूला बना लिया है। क्या सच कह रही हो? जी हाँ, आपका आमिल जब मुझ पर अमल कर रहा था तो पास्कल ने मेरे दिमाग पर कब्जा जमाया हुआ था। मैं आमिल को उसकी उस गद्दारी से आगाह ना कर सकी। आमिल के जाने के बाद उसने मुझ पर तनवीमी अमल किया था। मैं उसकी ताबेदार बन गई हूँ, लेकिन उसके अमल में कोई ऐसी खराबी रह गई है जिसके बायस मैं ताबेदार होने के बावजूद उसे नापसंद करती हूँ। अभी वो मेरे पास आया था, मैंने उसे भगा दिया है, मगर मेरा दिमाग दुख रहा है। मेरे अंदर कोई चीख चीख कर कहता है, पास्कल को वापस बुलाऊं और उसकी ताबेदारी करूं। प्लीज़ मुझे किसी तरह इस अजाब से निकालें। पास्कल को मजबूर करें कि वो मेरा पीछा छोड़ दे। ज़रा 1 मिनट, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। मास्क मैन ने रिसीवर उठाकर अपने नायब को हुक्म दिया, पास्कल बूबा को अभी फौजी छावनी में गिरफ्तार करके लाओ और फौज के आला अफसरान को फ़ौरन हाजिर होने की इतला दो। फिर उसने रिसीवर रखकर पूछा, रोज़मेरी तुम अभी कहाँ हो? मैं इस जगह की निशानदही नहीं कर सकती। पहली बार इस शहर में आई हूँ। वैसे ये जगह शहर से बाहर है, बहुत दूर 4 मकानात नज़र आ रहे हैं। मैं फ़ौजी हेडक्वार्टर जा रहा हूँ, तुम 15 मिनट बाद राब्ता करो। अगर पास्कल ने मेरे दिमाग में आकर कोई ज़्यादती की तो मैं आपके पास नहीं आ सकूँगी। फ़िक्र ना करो, मैं उस हराम खोर को ख्याल ख्वानी के काबिल ही नहीं रहने दूंगा। जब तक उसकी गद्दारी खुलकर सामने नहीं आएगी, उसका दिमाग कमज़ोर बना कर रखूँगा। जो दिमागी तौर पर हाजिर होकर मुस्कुराने लगी। मुझे खुशी हो रही थी, अब उसे गहरी चाल चलने वाली मक्कारी आ गई है। वो 15 मिनट के बाद मास्क मैन के पास आई। फौजी हेडक्वार्टर में तमाम आला अफसरान मौजूद थे। पास्कल बूबा 2 मुसल्लह फौजियों के दरमियान एक मुलजिम की हैसियत से खड़ा हुआ था। मास्क मैन ने पूछा, पास्कल तुम अपनी गिरफ्तारी की वजह समझ गए हो, बेहतर है अपनी ज़ुबान से आला अफसरान को बताओ। वो बोला, मैं अपनी गिरफ्तारी पर हैरान हूँ क्योंकि मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। क्या तुमने रोज़मेरी पर तनवीमी अमल नहीं किया? वो एकदम से चौंक गया, फिर संभल कर बोला, नहीं, ये झूठ है। मैं भला उस पर तनवीमी अमल किस तरह कर सकता हूँ? वो सांस रोक लेती है, दिमाग में आने नहीं देती। मैं आखिरी मौका देता हूँ, सच बोलो वरना मैं बड़ी आसानी से सच उगलवा लूँगा। मैं सच्चा हूँ, आप लोग जिस तरह चाहें अपना इत्मीनान कर लें। मास्क मैन ने हुक्म दिया, यहाँ तमाम अफसरान के सामने एक बेड लाया जाए। हमारा आमिल उस पर पास्कल को लिटाकर तनवीमी अमल करेगा और उसके चोर ख्यालात हम पर आश्कार करेगा। पास्कल का चेहरा जर्द पड़ गया। वो घबरा कर बोला, मैं एहतजाज करता हूँ, ये मुझ जैसे मुल्क और कौम के वफादार के साथ ज़्यादती है।
आप जैसे आला अफसरान को मास्क मैन का मुहासबा करना चाहिए। ये किसी खास वजह से मेरे साथ दुश्मनी कर रहा है। एक आला अफसर ने कहा, मिस्टर पास्कल, ये कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि तुम्हारी सच्चाई का सबूत पेश करने के लिए तनवीमी अमल लाजमी है। दूसरे अफसर ने पूछा, अगर तुम सच्चे हो तो घबराते क्यों हो? वो समझ रहा था कि उसे आसाबी कमज़ोरी में मुब्तला करके आमिल उसे मामूल बनाएगा तो वो बेखबरी में सच बोलता जाएगा। ये ज़ाहिर हो जाएगा कि उसने तनवीमी अमल के ज़रिए जोजो को अपनी मामूला और ताबेदार बनाया है। एक तो ये परेशानी थी कि जोजो पर तनवीमी अमल कामयाब हुआ है या नहीं, क्योंकि वो तो उसकी आमद पर सांस रोक लिया करती थी। आखिरी बार उसे नागवारी से भगा दिया था। वो फिर एक बार उसके पास जाकर तस्दीक करना चाहता था कि वो किस हद तक उसकी मामूला बन चुकी है, क्योंकि जोजो उसकी तरफ माइल होने वाली बातें भी कर चुकी थी। तमाम अफसरान के सामने एक ट्रॉली बेड लाया गया। 2 मुसल्लह फौजी पास्कल को उधर ले जाने लगे। वो जिद्दोजहद करके खुद को छुड़ाते हुए बोला, मुझ पर अमल ना कराओ, मैं एतराफ़ करता हूँ, मैंने रोज़मेरी पर तनवीमी अमल किया है। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। फिर मास्क मैन ने कहा, यह पूछना बेकार है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जाहिर है तुम्हारे अंदर मुल्क कौम की वफादारी के जरासीम ख़त्म हो चुके हैं। वो चीख चीख कर कहने लगा, मैं वफादार हूँ, आज भी अपने मुल्क कौम का वफादार हूँ और मरते दम तक रहूँगा। मैंने सिर्फ हासिदाना जज्बों से रोज़मेरी को अपना ताबेदार बनाया है ताकि वो मेरे मुकाबले में ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल ना कर सके। उसे कामयाबियों से रोकने का मतलब ये है कि तुम मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हो। गद्दारी और कैसे होती है? नहीं, मैंने ये नहीं सोचा था, लेकिन मैं वफादार हूँ। एक नादान सिपाही की वफादारी दुश्मनों को फ़ायदा पहुँचाती है। तुमने रोज़मेरी को कहाँ ले जाकर छुपाया है? जोजो ने एक फ़ौजी अफसर की ज़ुबान से कहा, यह बहुत सी बातों को छुपा रहा है। आप सबसे पहले ये मालूम करें कि ये मेरे दिमाग से अपना अमल कब ख़त्म करेगा। मास्क मैन ने कहा, यह भी तुम्हारे दिमाग में जाएगा और अपने अमल का तोड़ करेगा। जोजो ने कहा, नो सर, अभी इसका अमल अधूरा है, इसीलिए तो मैं शिकायत करने आ गई हूँ। ये दोबारा आकर अपने साबिका अमल को पुख्ता कर सकता है। तमाम अफसरान ने तायद की। बेशक पास्कल अब काबिले भरोसा नहीं रहा, लेकिन सवाल ये था कि रोज़मेरी को किसी खुफिया अड्डे से निकाल कर किस तरह होटल में पहुंचाया जाए। जोजो ने कहा, एक और रास्ता है, आप पास्कल पर तनवीमी अमल कराएं। आमिल ये बात उसके दिमाग में नक्श करेगा कि ये रोज़मेरी पर किए गए अमल का तोड़ करे और इस सिलसिले में हम में से किसी को धोखा नहीं देगा। ये मशवरा काबिल कबूल था। इस पर फ़ौरन अमल किया गया। पास्कल के चीखने चिल्लाने के बावजूद उसे आसाबी कमज़ोरी का इंजेक्शन लगा दिया गया। वो बेदस्तो पा होकर बिस्तर पर पड़ा रह गया। मैं खामोशी से यह सब कुछ देख रहा था। मेरे जहन में बहुत कुछ था कि इन हालात में दुश्मनों को किस तरह शय देनी चाहिए, लेकिन जोजो पहली बार अपनी तमाम तर जहानत के साथ मेरे साथ आई थी और अमली मैदान में अपनी भरपूर सलाहियत का मुजाहिरा कर रही थी। मैं देखना चाहता था कि अब वो इन हालात में क्या तमाशा करेगी। तब मैंने देखा वो पास्कल के दिमाग में आकर कह रही थी, देखो तुम कहाँ पड़े हो, ये वही जगह है जहाँ कल मैं पड़ी हुई थी। मेरे सामने आमिल था। जब वो चला गया तो तुम मेरे दिमाग में आए थे और मैं तुम्हें निकाल नहीं पाई थी। अब तुम्हारे सामने वही आमिल आएगा। नहीं रोज़मेरी, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगर तुम मुझे बचा लो तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी का एक अहम राज तुम्हें बताऊंगा। मैं तुम्हारे दिमाग के तहखाने में पहुंचकर अभी वो राज मालूम कर लूँगी। मुझ पर एहसान करने और मेरे किसी काम आने का वक्त गुजर चुका है। ये कहते हुए वो उसके छुपे हुए ख्यालात पढ़ने लगी। अंदर जो ख्यालात होते हैं उनमें कोई खोट नहीं होता। वो झूठ होते हैं तो झूठ जाहिर करते हैं, सच होते हैं तो फिर आसमानी किताबों की तरह सच ही बयान करते हैं। जोजो ने जो ख्यालात पढ़े उनसे अब वो इनकार नहीं कर सकती थी। पास्कल के चोर ख्यालात कह रहे थे, तुम्हारा सलाम जोजो है, जोजो है। तुम मुसलमान हो, मुसलमान हो। तुम पारस की शरीके हयात हो, तुम पारस की शरीके हयात हो। तमाम तमाशे एक तरफ और सच्चाई की मेराज एक तरफ। जोजो सब कुछ भूल गई। दिमागी तौर पर हाजिर होते ही उछल कर खड़ी हो गई। चीख कर बोली, पारस। सोनिया ने तैयारे से बाहर जीने की बुलंदी पर आकर देखा। सामने एयरपोर्ट की इमारत पर लिखा हुआ था, अलून अब्दुल मालिक एयरपोर्ट। ये वही एयरपोर्ट था जहां तूफान में भटकने वाला तैयारा पहुंचा था और यहां तमाम मुसाफिरों को बखैरियत पहुंचाने के लिए जहाज के अमले ने सानी और अली को एक वीराने में बेयारो मददगार छोड़ दिया था। वो तैयारा एक डेड रनवे पर खड़ा हुआ था। उसके मुसाफिर एयरपोर्ट के एक बड़े वेटिंग हॉल में बैठे और लेटे हुए थे। वो तैयारा परवाज के काबिल था,
لیکن سہمے ہوئے مسافر اسے آسیب زدہ طیارہ کہہ رہے تھے اور دوبارہ اس میں سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف جانے سے انکار کر رہے تھے۔ ایسی صورت میں دوسرا طیارہ نیو یارک سے بھیجنے کی بات چیت جاری تھی۔ مسافروں نے ایک رات ایئرپورٹ پر گزاری تھی اور اب شام تک طیارے کی آمد کا یقین دلایا گیا تھا۔ اس طیارے کی آمد سے پہلے سونیا وہاں آ گئی تھی۔ سلمان اور سلطانہ نے بار بار خیال خوانی کر کے تصدیق کر لی تھی کہ وہ ثانی اور علی کے دماغوں میں پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ وہ دونوں زندہ ہیں مگر ان کے دماغ سوچ سے خالی ہیں اور خیال خوانی کرنے والوں کی سوچ ان کے دماغوں میں گونج کر رہ جاتی ہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں مسلسل سکتے کے عالم میں ہیں یا انہیں کوما میں رکھا گیا ہے۔ سونیا ایک چارٹرڈ طیارے میں آئی تھی۔ ماریتانیہ کی حکومت نے وہاں اس کے لیے ہیلی کاپٹر کا انتظام کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ایئرپورٹ پر ایک نیگرو افسر نے اس کا استقبال کیا۔ اس کے ساتھ مسلح سپاہی اور دوسرے افسر تھے۔ اس نے سونیا سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، آپ سے مل کر بہت خوشی ہو رہی ہے، مجھے یہاں کی انٹیلیجنس میں چیف کہتے ہیں۔ پولیس کے دوسرے افسران سے بھی تعارف ہوا۔ وہ بولی، میں ان مسافروں سے ملنا چاہتی ہوں جو آسیب زدہ طیارے میں سفر کر رہے تھے۔ افسران اسے ویٹنگ ہال میں لے آئے۔ سونیا 2-4 مسافروں سے سوالات کرنے لگی۔ سب کا جواب ایک ہی جیسا تھا کہ جب تک ثانی اور علی طیارے میں رہے باہر طوفان جاری رہا۔ ایک جگہ اترنے کے بعد باہر سے طیارے پر پتھر برسائے گئے، لیکن کھڑکی سے باہر دیکھنے والوں کا بیان تھا کہ پتھر پھینکنے والے نظر نہیں آ رہے تھے۔ کئی مسافروں نے کہا، ہم نے خود بخود مس ثانیہ سلمان اور علی تیمور کو الزام دینا شروع کر دیا تھا کہ ان کی وجہ سے طیارے پر آفت آ رہی ہے، اگر یہ باہر چلے جائیں گے تو ہم محفوظ رہیں گے۔ ہم نے محسوس کیا کہ یہ باتیں ہم بے اختیار بولتے جا رہے تھے، اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کے باہر جانے کے بعد پتھراؤ ختم ہو گیا، طوفان تھم گیا۔ پائلٹ نے بیان دیا تھا کہ وائرلیس میں جو خرابی پیدا ہو گئی تھی وہ خود بخود درست ہو گئی تھی، اور وہ کنٹرول ٹاور سے رابطہ قائم کر کے تمام مسافروں کو بخیریت الون عبد المالک کے چھوٹے سے شہر میں لایا تھا۔ انٹیلیجنس کے چیف نے اس کے ساتھ VIP روم میں آ کر کہا، اگرچہ یہ باتیں ناقابل یقین ہیں لیکن ہم افریقہ کے لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ کالا جادو صدیوں سے ہماری قدیم تہذیب کا ایک حصہ ہے۔ آج ہم مہذب کہلاتے ہیں پھر بھی جادو کو مانتے ہیں۔ سونیا نے کہا، بے شک ہماری دنیا میں جادو ہے اور ہم پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ کو ان جادوگروں کے اڈوں کا علم تو ہوگا جو اس ملک میں رہتے ہیں۔ جی ہاں، کچھ لوگوں کو جانتا ہوں۔ آپ آرام کریں پھر چلیں گے۔ میں کام کے وقت آرام نہیں کرتی، آپ مجھے ان جادوگروں سے ملوائیں۔ وہ کچھ پریشان ہو کر بولا، مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے، میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس قبیلے کا سردار آپ سے ملنا چاہے گا یا نہیں۔ آپ معلوم نہ کریں، میں اس کی مرضی کے خلاف اس سے ملوں گی، اچانک جا کر اسے ملاقات کروں گی۔ میڈم، وہ میرا دشمن بن جائے گا۔ جہاں جان کا خطرہ ہو وہاں ڈیوٹی سے بھاگ جاتے ہو۔ وہ جھینپ کر بولا، جی یہ بات نہیں ہے، میں مجرموں سے لڑنے اور قانون کی خاطر جان دینے سے نہیں ڈرتا، لیکن یہ جادوگر سامنے آ کر مقابلہ نہیں کرتے، کوئی ایسا کالا عمل کرتے ہیں کہ ہم یا ہمارے بچے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر سکتے ہیں۔ ان کے خلاف جرم کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہوتا۔ تم ان کے متعلق جو کچھ جانتے ہو بیان کرو۔ وہ تھوڑی دیر تک سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر بولا، امریکہ کے جنوب مشرق میں ایک جزیرہ ہیٹی ہے۔ وہاں ایک نہایت ظالم ڈکٹیٹر تھا جس کا نام زانکویس پاپاڈوک تھا۔ یہ اپنی طرز کا واحد حکمران ہے جس نے کالے جادو کی قوت سے جزیرے کے لاکھوں افراد پر برسوں حکمرانی کی۔ جب امریکی حکومت کو پتہ چلا کہ وہاں شیطان کی پوجا ہوتی ہے اور انسانی جانوں کی قربانی دی جاتی ہے تو امریکی فوج نے اس پر حملہ کر دیا۔ زانکویس پاپاڈوک کا ایک شاگرد سٹین پاپاڈوک اس جزیرے سے فرار ہو کر ملک گھومتا ہوا ماریتانیہ کے ایک علاقے نتافیہ میں آ گیا۔ سونیا نے کہا، اچھا تو مجھے نتافیہ جانا ہوگا، یہ کہاں ہے؟ ہمارے ملک کے جنوب میں، یہاں سے تقریباً 800 میل کے فاصلے پر ہے، مگر وہ بہت خطرناک علاقہ ہے۔ کالے جادو کی وجہ سے خطرناک ہے؟ جی ہاں، نتافیہ ایک خوبصورت شہر ہے۔ وہاں ہمارے جیسے کالے باشندے کم اور گوری چمڑی والے انگریز زیادہ ہیں۔ وہاں میں کئی بار جا چکا ہوں اور جو کچھ میں نے وہاں دیکھا اس پر آپ یقین نہیں کریں گی۔ اس شہر میں میری ایک بہن رہتی تھی۔ ایک رات اس نے خون کی قے کی، پھر مر گئی۔ ہم نے آخری تمام رسومات کے بعد اسے دفن کیا، لیکن وہ اپنی جگہ بے چینی سے پہلو بدل کر بولا، لیکن وہ اپنی موت کے 2 دن بعد یعنی تیسری رات کو ہمارے گھر آئی۔ ہم سب حیران رہ گئے۔ میری بیوی اور بچے اسے دیکھ کر دہشت سے چیخنے لگے۔ اس نے کہا، خاموش ہو جاؤ، میں نقصان پہنچانے نہیں آئی ہوں۔ تم لوگوں نے مجھے خالی تابوت میں ڈال کر دفن کر دیا۔
تمہیں میرے ضرورت کی چیزوں کو رکھنا چاہیے تھا۔ کوئی بات نہیں، میں اپنا ضروری سامان لینے آئی ہوں۔ اس نے اٹیچی کیس میں اپنے پسندیدہ کپڑے اور اپنے استعمال کی دوسری چیزیں رکھیں۔ ہم پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ بہن جسے 2 دن پہلے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دفن کر کے آئے تھے، وہ زندہ ہو کر چلی آئی تھی۔ سونیا نے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ زندہ ہو کر آئی تھی؟ جی ہاں میڈم، یہ جادو کی ایک قسم ہے، اسے ووڈو کہتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔